Good morning, students. Welcome to Gyanmanji Vidyapith MOVA online digital platform. As you know, I am your science teacher Vatsal Trivedi. So आज हम डे 5 के अंदर आ गए हैं. सो डे 4 के अंदर हमने क्या क्या देखा था, कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर क्या क्या होता है, उसके बारे में हमने कुछ स्टडी की थी. सो आज हम स्टडी करने वाले कन्वेक्शन के बारे में. सो कन्वेक्शन और कंडक्शन के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो हम भी आज देखने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज टॉपिक. बिफोर द स्टार्ट डे 5, लेट्स टेक स्मॉल रिवीजन ऑफ डे 4. सो लेट्स स्टार्ट इट. So here are some question answer regarding the previous session. So let's solve it and revise to the previous topic. NCERT exercise page number 44, 45. So please open your NCERT book. If you do not have NCERT books, no problem. You can directly solve on your screen. Give two examples of each conductors or insulator of heat. So the example of कंडक्टर इज एल्यूमिनियम और आयन जिसके अंदर से हीट पास हो सकती है, और द एग्जांपल्स ऑफ इंसुलेटर दैट कैन नॉट पास द हीट, सो वुड और प्लास्टिक. नेक्स्ट, stainless steel pans are usually provided with the copper bottoms. This reason is called is could be that copper is a better conductor of heat the stainless steel. तो ये सही आंसर आएगा. मैंने यहाँ पे सी पर टिक मार्क किया है. Then, what is the name of the process which by a heat generally flows through the solid? The process is called the conduction. The heat generally flows through the solid by the process is called the conduction. Next, do all materials allows heat to pass through them easily? No, all materials do not allow heat pass through them easily, because materials allow through heat pass through the easily, they are called conductors of heat. Materials that do not allows to pass heat easily, it's called the insulator. जिसके अंदर से हीट पास हो सकती है वो सारे कंडक्टर्स, हीट पास नहीं होगी वो इंसुलेटर्स के अंदर आएगी. Now let's solve practice question number 5. Fill in your observation in your table below. What happened when the chemical was added in a water? What happened when the water was heated? What happened? Think this happened. What do you think this happened? ये एक एक्टिविटी बेस्ड है. मैं यहाँ पर इसीलिए आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये हम जब स्कूल के अंदर स्टार्ट होगी तब हम एक्टिविटी कुछ करेंगे, तो तब हम ये करेंगे. तो आज यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, यानी कि आपको भी दिखा देता हूँ, और यहाँ पे आप लोग को जस्ट ये समझना है. ये क्वेश्चन 5.1 आपको लिखना है नहीं. So when a potassium permanganate crystal was added in a water, the steadied down the bottom of the flask and started the dissolving. जब हम पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट, ये क्रिस्टल है यानी कि केमिकल है, जब हम पानी के अंदर डालेंगे तो पानी के अंदर डिसोल्व होना स्टार्ट हो जाएगा. देन जब हम when the water was heated, the dissolving potassium permanganate, so is the water started into rise slowly. Okay, and the potassium permanganate started to rise in the water upon the heat because hot water like the fuels and rise the heating. So ये हमने कुछ एक एक्टिविटी बेस है जो हम देखेंगे इन जब स्कूल स्टार्ट होगी तब हम करेंगे. तो ये क्वेश्चन आप अपने होमवर्क के अंदर नहीं करेंगे. सो नाउ लेट्स वॉच वन अमेजिंग वीडियो. सो वीडियो क्या है वो ध्यान से देखना. कंडक्शन हमने देख लिया, अब हम कन्वेक्शन के बारे में देखने वाले. सो व्हाट इज द कन्वेक्शन, ये हम यहाँ पे देखेंगे. Convection. When we heat a fluid, that is, a liquid or a gas, particles of the fluid closest to the heat gain energy. Since these particles are loosely packed, they move upwards and the colder particles with less heat energy move downwards to replace them. This sets up what is called a convection current. As the fluid continues to receive heat, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बीकर एक फ्लास्क के अंदर एयर है और एक फ्लास्क के अंदर वाटर है. जब हम उसको गर्म करेंगे तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स रहेंगे, तो धीरे धीरे जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स, जब हमने उसको गर्म करना स्टार्ट नहीं किया है तब वो पार्टिकल्स ठंडे हो गए, उसका टेम्परेचर नॉर्मल होगा.
जब हम उसको हीट करेंगे तो धीरे धीरे वन बाय वन पार्टिकल्स, आपने कंडक्शन के अंदर देखा था कि वन बाय वन पार्टिकल्स हीट होते जा रहे हैं। सो जो नीचे के हिस्से वाले जो पार्टिकल्स होंगे वो गर्म होके ऊपरी साइड जाएंगे और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल्स है वो नीचे आने लगेंगे और वापस वो गर्म हो गए, जब वो ऊपर जाएंगे तब नीचे वाले, ये पूरी एक साइकिल कंटिन्यूअस चलती रहेगी। तो ये साइकिल को हम बोलेंगे कन्वेक्शन करंट। This convection current heats up the entire fluid. To summarize, the process of heat transfer involving the actual movement of particles is called convection. The process of the heat transfer involving the actual movement of particles is called convection। यानी कि हीट ट्रांसफर की जो प्रोसेस है वो नीचे वाले जो गर्म जो पार्टिकल्स रहेंगे वो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और ऊपर के जो ठंडे पार्टिकल्स नीचे आएंगे, वापस वो गर्म होकर ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जो गर्म थे वापस नीचे आएंगे, पूरी साइकिल चलेगी, इसको कन्वेक्शन करंट बोलेंगे। और जो ये मूवमेंट हो रही है उसको हम बोलेंगे कन्वेक्शन। सो नाउ हमने कन्वेक्शन देखा, यानी कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब हम किसी पार्टिकल्स को हीट एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे, उसको गर्म नहीं करेंगे, इन लोकल लैंग्वेज કોઈ પણ વસ્તુને જ્યાં સુધી ગરમ ન કરો ત્યાં સુધી એની અંદરના જે પાર્ટિકલ્સ છે, કોઈ પણ ફ્યુલ હોય યાની કે એર હોય કે પછી પાણી હોય, એ બેઉની અંદરના પાર્ટિકલ્સ જ્યાં સુધી એને બહારથી કોઈ ગરમી આપવામાં ન આવે, જ્યાં સુધી એને કોઈ એનર્જી પ્રોવાઈડ કરવામાં નથી આવતી, ત્યાં સુધી એના પાર્ટિકલ્સ હતા એવા ને એવા જ રહેવાના છે, એનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ રહેવાનું છે, બરોબર। બટ whenever we apply the energy, જ્યારે આપણે કંઈક એનર્જી એને આપશું, યાની કે એને કંઈક ગરમ કરીએ છીએ, શું એને ગરમ કરીશ તો જે નીચેના એરિયાની અંદર જે પાણી હશે અથવા કોઈ પણ એર હશે, કોઈ પણ ફ્યુલ્ડ હશે, એના જે પાર્ટિકલ્સ છે એ ગરમ થવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, ધીમે ધીમે એ ગરમ થશે, એટલે ગરમ થતા 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 એ પાર્ટિકલ્સ ઉપરની બાજુ જવાનું શરૂ કરશે અને ઉપરના પાર્ટિકલ્સ છે એ નીચે આવવાનું શરૂ કરશે અને પછી નીચેના જે ઠંડા પાર્ટિકલ્સ જે હશે, ઉપરથી જે ઠંડા પાર્ટિકલ્સ નીચે આવ્યા એ વળી પાછા ગરમ થવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, ગરમ થઈને વળી પાછા ઉપર જશે, પાછા ઉપર જે ગરમ થયેલા પહોંચ્યા હતા એ ઠંડા થઈને નીચે આવશે। તો આ આખી પ્રોસેસ છે ને કન્વેક્શન કહેવાય, બરોબર। સો ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ધ કન્વેક્શન। સો લેટ્સ સોલ્વ the practice question number 5 regarding to convection or convection. So first, practice question number 5.2. Complete the diagram by adding arrows to show how convection work for the light candle. So यहाँ पे आप ये एरो के अंदर हमको कंप्लीट करना है, तो वो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाय एरो आपको दिखाया है ब्लू और रेड के मदद से, कंडक्शन और कन्वेक्शन आपको ये ड्रॉ करना है। नेक्स्ट, compare and construct the conduction and convection with the help of the two example. So यहाँ पे कंडक्शन और कन्वेक्शन का हम डिफरेंस दिखा रहा हूँ। The heat of transfer take place in all states of matter and in convection the heat transfer takes place only fuel। ये फ्यूल्ड के अंदर होता है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, और सभी स्टेट्स के अंदर होता है मैटर के उसको हम बोलेंगे कंडक्शन। It is transfer the heat by the physical context or it is transfer heat by the motion or a liquid। यहाँ पे एक डिफरेंस है। Now it is take place because of the difference in the temperature. Heat flows to the region to high temperature to the region of lower temperature. Now in convection it takes place because of the difference in the density. Heat flows to higher density region to lower density region। जिसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी उस पर डिपेंडेंट करेंगे, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है उस पर डिपेंडेंट करेगी इन कन्वेंशन, और वहाँ पे टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे इन कंडक्शन। नेक्स्ट, practice question number 5.3. Compare and construct the conduction of convection with the help of the two example। उसके दो एग्जाम्पल भी हमको देना है। So when the water unsealed is placed on the gas stove to boil, conduction of heat occurs from the stoves to the unsealed and from unsealed to the particles of water in contact with the unsealed. As these particles of water heated, the conduction and convection causes the water particles move, the entire water in unsealed gets heated. Okay. In next second example, if I burn my hand by touching a hot plate, the transfer of heat is happened through the conduction.
where heating air is an the cases of the land breeze, sea breeze through the convention. अभी कन्वेंशन कहाँ पे होती है ये भी आपको, आप कई जगह जाते हो, यानी कि सपोज इन समर सीजन हम दरिया किनारा जो होता है यानी कि सीशोर होता है, यहाँ पे हम जब जाते हैं तो उसका जो पानी होता है इन समर टाइम वो गर्म होता है, उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता है वो भी गर्म हो जाता है। ये जो प्रोसेस है कन्वेंशन प्रोसेस की वजह से होती है। सनलाइट की वजह से वो पूरा वाटर का जो सरफेस एरिया है, दरिया का वाटर सरफेस एरिया है वो गर्म होती है, और वहाँ से वो मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे गर्म होने की वजह से पूरी एंटायर बॉडी एंटायर एटमॉस्फेयर के अंदर हमको कुछ यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा मिलता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे कन्वेंशन प्रोसेस। ओके, सो आज हमने देखा कन्वेंशन क्या होता है। सो अभी मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपने कौन से पेज नंबर से हमने कुछ क्लियर किया। सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर SB5 पर से हमने कॉन्सेप्ट टाइम नंबर 5 सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में देखा और कन्वेंशन के बारे में देखा। सी ब्रीज यानी कि जो दरियाई एरिया होता है, और लैंड ब्रीज जमीन के ऊपर किस तरह से डे के दौरान और नाइट के दौरान किस तरह से हीट ट्रांसफर होती है जिसको हम कन्वेंशन बोलते हैं। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो ठंडी हवा से गर्म हवा किस तरह से बनती है। सो उसको हम सी ब्रीज बोलते हैं। ड्यूरिंग द डे द लैंड, ये हम आगे देखने वाले, बट यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि सी ब्रीज और लैंड ब्रीज क्या होते हैं। भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देन प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5.1 ऑब्जर्वेशन रिलेटेड एक्टिविटी बेस्ड है। सो हम यहाँ पे अभी आपको दिखा दिया है, आपको ये 5.1 ही नहीं लिखना है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एज होमवर्क। देन नेक्स्ट ऑन योर सप्लीमेंट्री बुक पेज नंबर 3 के ऊपर पेज नंबर 6 के ऊपर से हमने 5.2 और 5.3 भी यहाँ पे हमने कवर किया है। सो आई होप आप सबको ये सभी करना है। 5.2 के अंदर कैंडल ड्रॉ करके उसको बाय एरो हम उसको कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे, डिफाइन करेंगे। सो आई होप आप सबको सभी अच्छे से समझ में आ रहा है। इफ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। सो अभी हम यहाँ तक रखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्दी से मिलेंगे। सो अभी के लिए स्टे पीस स्टे होम। थैंक यू वेरी मच। टू बी कंटिन्यू ऑन नेक्स्ट वीडियो फन विद साइंस, एंजॉय द साइंस।